Namaste Salama. Welcome to अनुज कुमार ING. So जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने इनर्शियल फ्रेम डिस्कस किया था, मगर आज स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अच्छा, अगर आपको क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के बीच का डिफरेंस, व्हाट दे आर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, if you want to know that, then please acknowledge in the comment section. Then as the response look like, then I'll decide that I have to make the video or not, right? The difference between quantum physics and the classical physics and what they are. Secondly, हम जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसकी फिलोसफी थोड़ी अलग होगी, ओके? जैसे जो मैथमेटिकल पार्ट होता है फिजिक्स का, वो हम नीड बेसिस पढ़ेंगे. जैसे अभी हम न्यूटन लॉ स्टार्ट कर दिया है, तो न्यूटन लॉज का एप्लीकेशन से पहले वाला पार्ट है, तो जो वेक्टर उसमें यूज होगा, राइट? सो वील बी डूइंग दैट वेक्टर्स विद न्यूटन लॉज ओनली बिफोर द एप्लीकेशन पार्ट, ओके? वील डू कैलकुलस व्हेन द नीड फॉर कैलकुलस विल कम, यानी इन द काइनेमैटिक्स. होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके? You will recognize it later, okay? So Newton's third law. Let's start Newton's third law. Okay. So Newton's third law said that if a body A and a body B, so the force on body B by body A will be equal to the force on body A by B. We write like this: force on A by B, force on B by A. Is that clear? And one important word is here. You know, you have listened the action reaction word, right? Action reaction. To give it a more clarity, we use the word simultaneously. Why this word? See, suppose this is my hand and this is the whiteboard. If I slap the whiteboard like this, so when the force of my hand goes upon the whiteboard, simultaneously, you know, the उसी वक्त the whiteboard will oppose the force on my hand at the simultaneously, at the same time, उसी वक्त करेगा वो. मतलब जब ये टक्कर हुआ उसी वक्त फोर्स एक्सचेंज हुए, ओके? एक्शन रिएक्शन में क्या लगता है कि हल्का सा मतलब वो टाइम क्लैरिटी नहीं हो पाती है, लेकिन साइमल्टेनियसली यूज करने के बाद वी आर नाउ क्लियर दैट द फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली एट दैट टाइम ओनली, ओके? सो द न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेटेड दैट व्हेन अ body A, let the body be A, is when a body A is opposed by the force of body B, simultaneously the body B will apply a force on body A. Body A. And that force, how will that force look like? The force will look like equal and opposite, okay? So as soon as the body A applies the force on body B, the body B will simultaneously apply the equal and opposite force on body A. That's the Newton's third law. So there are various forces which are encountered in mechanics. The first force is mg, that's weight. The second one is normal. Third one is tension.
fourth one is spring, known as kx, and the fifth one is friction. Okay, so as the force will be equal, so now here a word comes, Newton's third law pair. Okay, so what's the Newton's third law pair? Suppose if I apply the mg force or the weight force on an object, the object will oppose the force mg only. Suppose this is the object A. Suppose it gives a force mg, so the body B will also give a mg. Okay, so the third law pair of the mg by body A will be the mg by body B, right? So this is the third law pair. Similarly, the third law pair for normal will be normal only, for tension will be tension only, for kx will be kx only, and for friction, friction will be the third law pair. As the third law pair should be equal, right? The force should be equal. तो वो क्या होंगे? वो third law pair जो फोर्स लगेगा उसी का इक्वल फोर्स ही उसका थर्ड लॉ पेयर होगा. Understood? So this was Newton's third law. Now the Newton's third law. One second. So the Newton's third law is universal. It is universal in classical physics. In classical physics, right? That's why for the clarity of this one, classical physics, I have asked you for the video, right? So please acknowledge in the comment section that you want a video on classical physics as well as quantum physics. It will be a single video only, right? Second, the third law will act on on only two bodies. There should be two bodies until and unless the third law is acted. Okay, so that means third law will be acting on two bodies, right? So this was a story regarding the Newton's third law of motion, right? Let's move forward. Now it comes for the forces, right? So let me write down all the forces that will be encountered in mechanics. First one is the mg, weight. Now the mg force. So look here, the mg force. So what's the mg force? Mg force is the gravitational attraction experienced by the object due to Earth. Like this. Suppose this is the object, okay, M. Okay, so this object will experience a mg force like this, the mg. So the gravitational force of Earth is attracting towards it, right? This is a table and the object is, let's suppose mass m is placed on it. So the mg force will act like this. Okay, it will be vertically downwards. Okay, so now if I ask you what is the third law pair for this mg, what is the third law pair for this mg, I will say like this. So the third law pair of the mg of mass m will be Earth itself, will be Earth, mg. The Earth is applying this force mg, and the third law pair, the mass m will also apply the force mg on the Earth, like this. This is the mass m, okay, and this is Earth. Earth is applying a force mg, the gravitational attraction experienced by the object due to Earth.
So the earth is attracting the mass m towards it, so the mass m will also attract earth towards it, right? So the third law here, for this mass m, for the force mg will be earth's mg, right? So let's some interesting facts about mg. So mg is written as gme upon r square. The g is the gravitational constant, m is the mass of earth, and this is the mass of the object, and this is the radius. Okay, you can also write it as g is equals to gme upon r square, as this mass and mass get cancelled. Okay, now I want to ask you something, right? If we say that g is acceleration due to gravity, is it correct? Let's talk on this. In this, F is equals to ma. Is ma a force? क्या ma force है? बिल्कुल नहीं. ma कैसे force हो सकता है? ma तो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीपल है, जो कि फोर्स के बराबर है. m is not a force. It is a mathematical calculation which is equal to force. Okay. So if m is not a force, and if in mg I say that g is acceleration, so how can I acknowledge this mg as force? How can I acknowledge this mg as force? It's impossible. If I tell that m is not a force, then how can be mg a force? Regardless, if I don't regard this as acceleration. Yeah, in the higher authors books, like in the H.C. Verma or in all the books, it's written acceleration due to gravity. But for us, for more clarity, we should not say it as acceleration due to gravity. We should say it as free fall acceleration. What? Free fall acceleration. Or simply, g is nothing but it is equal to the gravitational constant multiplied by the mass of earth upon radius square. Okay, so this is a small concept which should you should grasp it about the acceleration and the acceleration due to gravity. एक्सेलरेशन वो चेंज नहीं हो सकता, बेशक उसमें ग्रेविटी या जिसमें ग्रेविटी ना हो, पर एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही होता है. ओके, नेक्स्ट फोर्स. वर्टिकल डाउनवर्ड का तो समझ में आया ना. जैसे ये वर्टिकली डाउनवर्ड है नीचे की तरफ वर्टिकली, और मैंने इसे इंक्लाइन बनाऊं और ऐसे कर दूं, तो इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कैसे होगा? ऐसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, रिमेंबर दिस वन, फ्री फॉल एक्सेलरेशन. ओके, फ्री फॉल acceleration. If we regard it as acceleration due to gravity, then we can't regard it as force, as m is not a force. Okay, for higher authors, they regard it as acceleration due to gravity, right? They have master's degrees, but for us, we can't approximately regard it as the acceleration. Okay, so remember, grasp this concept. Next force is the normal contact force. Normal contact force. As the name suggests that anything in contact, या आप इसको रिगार्ड कर पा रहे हो कि कोई भी ऐसे कांटेक्ट में रहेगा तो शायद उस फोर्स की बात हो रही होगी, राइट? आइए देखते हैं. भाई, कोई ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है तो उनके बीच में लग रहा फोर्स, ये m2 ये m1, ये फोर्स होगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, राइट? इसके कुछ it will act upon two bodies, right? देखिए, ये दो बॉडीज आ रहे हैं. जैसे ये m1 है, तो इसका ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लगा रहा है,
और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स M1 M2 पे इधर लगा रहा है, M2 पर ये इधर लगा रहा है। क्या चीज समझ में आई? M2 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहां लगाएगा, M1 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स M2 पर उस तरफ लगा रहा होगा। दोनों इक्वल फोर्स कह सकते हैं इसको। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास आता है कि ये जो फोर्स होता है ये पुशिंग फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इस M1 ब्लॉक को यहां रखा हुआ है, तो ये किसके साथ, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड ट्राई करेगा मैं उसको पुश करूं, राइट। वेयर एज जो M1 मास है ये ट्राई करेगा कि मैं इस ग्राउंड को पुश करूं। इस वजह से बैलेंस हो पाते हैं। जैसे ये ग्राउंड जो है ये ऐसे पुश कर रहा होगा, ये M1 जो है ये ऐसे पुश कर रहा होगा, ओके। ये क्या पुशिंग फोर्स है? इट इज अ पुशिंग फोर्स, इट इज अ पुशिंग फोर्स, ओके। जैसे ग्राउंड M1 को ऊपर पुश कर रहा होगा, पर जो M1 है वो ग्राउंड को नीचे पुश कर रहा होगा। इस वजह से जो फोर्स है ये क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, राइट। सो अगला पॉइंट हमारा क्या होता है कि जो ये हमारा फोर्स होता है नॉर्मल कांटेक्ट, ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी दो सरफेसेस, ये दो सरफेस है, तो ये वाला सरफेस इधर परपेंडिकुलर में कर रहा होगा, ये वाला सरफेस इधर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स में कर रहा होगा। अभी हमने जस्ट देखा, दो ब्लॉक्स में हमने देखा था, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया था कौन से डायरेक्शन में होंगे, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ओके। अगला हमारा पॉइंट ये आ देता हूं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, अगला ये कैसे कांटेक्ट फोर्स, कैसे फोर्स बनता है, अब हम वहां देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि फोर्सेस सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, एक मास मास इंटरैक्शन, एक चार्ज इंटरैक्शन, यानी इलेक्ट्रोकुलम्बिक फोर्स, और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही बोलते हैं, और होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए जो अभी इससे पहले हमने बताया था कि हमें फोर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि फोर्स दो ही तरह के होते हैं, उसी से सारे फोर्सेस अराइज होते हैं, राइट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज किया हमने, कैसे हमने मस्कुलर फोर्स को अराइज करवाया, उन्हीं दो फोर्सेस से। प्लीज जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा उसको। उसी तरह फोर्स से दो ही हो सकते हैं, इसीलिए हमने एमए को फोर्स रिगार्ड नहीं किया। और अगर एमए यानी ए को जो एक्सेलरेशन है, अगर एमए को फोर्स कर देते, एमए को अगर फोर्स कर देते तो जी एक्सेलरेशन हो जाता, पर एमए तो फोर्स है ही नहीं, तो जी एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, ओके। इसीलिए हमने जी को फ्री फॉल एक्सेलरेशन कहा, ओके। नेक्स्ट, तो ये कैसे बनता है, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, M1 M2। अब जब ये दो कांटेक्ट में होते हैं, ऐसे कांटेक्ट में होते हैं, तो इसके एटम्स और इसके एटम्स जब कनेक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं। याद है हमने पढ़ा था मास मास इंटरैक्शन, तो ये मास इंटरैक्ट होते हैं। इस इंटरैक्शन की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है, इस फोर्स की वजह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अराइज होता है, अंडरस्टैंड। इट arises due to electromagnetic or coulombic force in a body, understand। कैसे होता है, ऐसे ये हमने दो मास रखे, इस सपोज हमने सरफेस को ले लिया, एक सरफेस और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सरफेस और ये ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट के एटम्स होंगे और सरफेस के एटम्स होंगे, ये जब अपने आप को बाइंड कर रहे होंगे तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन रहा होगा, उस फोर्स की वजह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बनता है, और इस वजह से वो कांटेक्ट में रह पाते हैं, अंडरस्टैंड। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तभी बनेगा जब जो नॉर्मल है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ओके। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग ही रहा होगा, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कांटेक्ट फोर्स है तो ऑब्जेक्ट नॉर्मल में होंगे, ये भी हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। इसमें कुछ एक्सेलरेशन का भी खेल है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के शेप्स का भी खेल है, ओके।
अभी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को और डीप से पढ़ते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट में होंगे तभी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अराइज होगा। अब देखिए, we have seen here that the normal contact force is in perpendicular direction, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे tangent का भी गेम दिख रहा है ना, कि एक tangent perpendicular डायरेक्शन लगाती है, यानी कुछ ऐसे एक स्मूथ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है, और यहाँ tangent बन रहा है। क्या बन रहा है? tangent बन रहा है। tangent यहां से परपेंडिकुलर है, यहां से परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं? टू स्मूथ सर्फेसेस, टू स्मूथ सर्फेसेस में जो है स्मूथ में टैंजेंट बन रहा है, दोनों कॉमन टैंजेंट है और जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो यहां पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों साइड से बन रहा है कि नहीं? हमने एक पढ़ा था कि जो एनसीएफ है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है और यहाँ दोनों स्मूथ सर्फेसेस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन बन रहा है। कुछ ऐसा समझ सकते हैं जो हमने पढ़ा था इससे पहले, ये टैंजेंट बन रहा है दोनों का, ये परपेंडिकुलर आराम से बन रहा है। दूसरा केस क्या होता है, ये नॉर्मल, ये स्मूथ सरफेस और एक ये एज, वन स्मूथ वन एज। ओके, यहां टैंजेंट बनाते हैं तो यहां पे एक ही साइड परपेंडिकुलर बनेगा, इस साइड टैंजेंट का सपोर्ट नहीं होगा। फिर भी इसको हम एनसीएफ में कैटेगराइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहां परपेंडिकुलर बन रहा है। एनसीएफ will apply here as the smooth surface have tangent and the NCF is in परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ एनसीएफ की एक ही वजह है, क्या? कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एनसीएफ का एक ही रीजन है यहाँ पे कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। यहाँ दोनों परपेंडिकुलर में थे तो एनसीएफ दोनों की साइड लग गया। यहाँ पर भी एक ही साइड लग रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है तो एनसीएफ आराम से बन रहा है। पर अगर मैं ऐसा ऑब्जेक्ट ले लूं दोनों एज, क्या एनसीएफ लगेगा? एनसीएफ छोड़ा तो टैंजेंट भी नहीं बनेगा। टैंजेंट नहीं बना, आप बोलोगे लकीर कैसे? तो ऐसे परपेंडिकुलर कहां बनाऊं? परपेंडिकुलर कहां बनाऊं? बन सकता है? नहीं बन सकता। तो मतलब इन दो सरफेसेस के बीच कांटेक्ट है मगर क्या नहीं है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है ही नहीं। इस वजह से यहां पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रही है। हियर नो एनसीएफ इज हियर, नो एनसीएफ विल अराइज। क्यों नहीं अराइज होगी? ड्यू टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन और यू कैन से टैंजेंट। ना तो टैंजेंट की कोई यहां पे पॉसिबिलिटी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा ही नहीं तो एनसीएफ कैसे लगेगा? एनसीएफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है। परपेंडिकुलर। ओके, तो ये थी हमारी एनसीएफ की स्टोरी। आपने देखा कि कैसे यहां पे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है इस वाले केस में, मगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं है। ओके, अब हमने दो फोर्स काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसको बिल्कुल जड़ से हमने इसको पकड़ लिया है। अब एक हल्का सा छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन लॉज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे न्यूटन लॉ से क्वेश्चन बनेंगे इससे। फ्री बॉडी डायग्राम्स। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम्स? एफबीडीज, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफबीडी। ओके, जितने भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं और जब फोर्सेस को हम उसको बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स।
all the forces acting upon a body, all the forces acting upon a body, and when we draw it, that diagram is known as free body diagram. Suppose ये एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने m, और मुझे इस ऑब्जेक्ट m1 का क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. इस m1 को यहां पकड़ के ले आओ, ले पकड़ के, ये जो उसका ये सरफेस है, ये सरफेस इस पे कांटेक्ट लगा रहा होगा. कहां लगा रहा होगा, आप बताइए कहां लगा रहा होगा. हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल कांटेक्ट पुशिंग फोर्स है. पुशिंग फोर्स की वजह से वो उसको ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा होगा. क्यों, सरफेस उसको पुश करना चाहता है. तो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ. नॉर्मल कहां लगेगा, ऊपर की तरफ. और mg, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, mg अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ. कहां लगेगा, नीचे की तरफ. बन गया फ्री बॉडी डायग्राम. अब मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसमें आपके पूरे न्यूटन लॉज अच्छे से हो जाएंगे, तीनों के तीनों लॉज आपके स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे. दूसरा क्या होगा, आपकी फ्री बॉडी डायग्राम का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा. इसके लिए मुझे क्या, एक डोंकी बनाना है. ओके, तो गधा तैयार है. अब इस क्वेश्चन में क्या इंटरेस्टिंग चीज है, इस आदमी ने ये ऑब्जेक्ट ए इसके ऊपर नहीं रखा है क्योंकि इसको लग रहा है कि गधा इतना वजन नहीं उठा पाएगा. हमको प्रूफ करना है कि यहां पर एक नहीं दो गधे हैं, एक ये आदमी भी और एक तो ये खुद है. तो हमने इसको जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको ए मान लिया, इस आदमी को बी मान लिया, इस गधे को सी मान लिया, और ऑब्जेक्ट सरफेस और सरफेस को क्या, डी मान लिया. अब हमें इसको क्या करना है, प्रूफ देयर आर टू डोंकीज. यहां पर आपके तीनों लॉज अगर उसको अच्छे से करें और एफबीडी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब क्या करना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑब्जेक्ट ए का बनाते हैं. पहले ऑब्जेक्ट ए पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इस आदमी के द्वारा फ्रॉम दिस मैन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, पुशिंग फोर्स ऊपर फेंकेगा ये एन. ये क्या है, नीचे का अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी इसको, m1g, मास 1. इसको हमने क्या बोल दिया, इसका मास को हमने बोल दिया m1g. ओके, इस आदमी का बनाते हैं ऑब्जेक्ट बी. इसको हमने क्या लिया था, बी पे कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक जो गधा इसको दे रहा होगा, जो ये गधे के द्वारा लग रहा होगा, गधा इसको क्या ऊपर फेंक रहा होगा, गधा इसको ऊपर फेंक रहा होगा. तो इसको मैं n1 डैश ले लेता हूं, इसको हम n1 ले लेते हैं. ठीक है, आदमी खुद नीचे की तरफ जा रहा होगा. ठीक है, और ये आदमी खुद गधे पे भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स डाल रहा होगा. एक फोर्स नीचे भी आ रहा होगा. नीचे दो फोर्स आ रहे हैं इस बार, एक तो अर्थ जो अट्रैक्ट कर रही है और जो आदमी इस गधे पे डाल रहा है. तो टोटल कितने फोर्स आ गए, 3 फोर्स आ गए. ठीक है, अब एक चीज हम यहां समझ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं n1 डैश. वैसे हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हम गधे पे लग रहा है ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है. अब ऑब्जेक्ट सी का बनाते हैं, काम करते हैं. ऑब्जेक्ट सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. एक पहला जो इसको अर्थ सरफेस ऊपर फेंक रही है, लेट्स सपोज इट बी n1 डैश. ठीक है, जो आदमी इस पे लगा रहा है n, इसको ले लेते हैं n2 ले लेते हैं, और एक mg खुद जो धरती माता इसको बुला रही है mg. के सारे फोर्सेस बन चुके हैं सारे. एक धरती माता इसको ऊपर फेंक रही है, अर्थ सरफेस फेंक रही है ऊपर, एक आदमी इसको नीचे फेंक रहा है. ओके, और एक mg फोर्स धरती माता की तरफ खींच ही रही है. ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां पे जो हमारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसका थर्ड लॉ पेयर क्या होगा, इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का थर्ड लॉ पेयर क्या होगा. क्या इसका थर्ड लॉ पेयर ये नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिए, क्या इसका थर्ड लॉ पेयर ये नहीं होना चाहिए. हाँ, तो हमने क्या बोला, इस mg का ये n थर्ड लॉ पेयर होगा, ये इस n2 का,
कैसे होगा? नहीं हो सकता। आपने एक फोर्स बनाया, कौन सा नहीं बनाया? हमने ये तो बना दिया कि आदमी उसके ऊपर फेंक रहा है, पर ये ईट भी, ये ऑब्जेक्ट भी तो आदमी को नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगा रही है। कौन सा? इसको हम क्या नाम देते हैं? N2 डैश कर देते हैं, काम करते हैं N2 डैश। इस ऑब्जेक्ट के पास आके बनाते हैं। ये देखो ऑब्जेक्ट ए पे कौन से लग रहे हैं? एक न्यूट्रल आदमी की वजह से, बाय बी एक mg लग रहा है। ठीक है, इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस आदमी के ऊपर ध्यान से देखिए। एक N2 डैश हमने बोला था इसको, जो ये ब्रिक लगा रहा है, ऑब्जेक्ट लगा रहा है इसके ऊपर। एक जो ये खुद लगा रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया था? N1 बोल दिया था। इसको हमने क्या N1 बोल दिया था। और एक mg इसके ऊपर लग रहा है। क्या लग रहा है? mg। तो क्या N2 डैश, क्या n का थर्ड लॉ पेयर नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखिए, N1 ऊपर की तरफ जा रहा है और N2 डैश नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या N1 का थर्ड लॉ, n का थर्ड लॉ पेयर N2 डैश नहीं हो जाएगा? ध्यान से गौर करिए इसको, ध्यान से। ये सपोज मैंने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर ही रख लिया। ये ए, ये बी, ए और बी है। ये एन वाला फोर्स कहां से आ रहा था? बी से आ रहा था। एन वाला फोर्स बी से आ रहा था। और ये ए जो है, ये भी तो बी पे फोर्स डाल रहा था। इसको हमने क्या बोला था? N2 डैश बोला था। N2 डैश बोला था कि नहीं? तो क्या देख रहे हैं? ये N2 डैश नीचे की तरफ, ये N डैश ऊपर की तरफ। तो क्या ये थर्ड लॉ पेयर बने कि नहीं? बिल्कुल बन गए। तो हम यहां लिख सकते हैं कि N इज इक्वल्स टू N2 डैश बाय विच लॉ? थर्ड लॉ। आगे न्यूटन का लॉ, बाय थर्ड लॉ, बाय थर्ड लॉ, बाय थर्ड लॉ, बाय थर्ड लॉ। अब यहां में n माइनस m1g इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं ऐसे, सॉरी m इंटू 0 लिख सकता हूं। बाय विच लॉ? बाय सेकेंड लॉ। अभी 0 कैसे लिख दिया मैंने? एक्सेलरेशन किस हद से लिख दिया? एक तो रेस्ट पे है। अब आपने बोला इनर्शियल फ्रेम भी तो था, आपने लास्ट वीडियो में बताया। अब हमने इनर्शियल फ्रेम में अभी के लिए क्या बताया था? कोई भी इंसान या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर मैं एक आदमी को बनाता हूं और वो इसको ये देख रहा है, उसके लिए रेस्ट पे है, और ये आदमी स्वयं रेस्ट पर है, तो किसके रिस्पेक्ट में है? अर्थ के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो क्या इनर्शियल फ्रेम में आ गया? इसकी वजह से एक्सेलरेशन 0 हुआ। तो n माइनस m1g इज इक्वल्स टू 0 हुआ, और n इज इक्वल्स टू m1g। अब कई लोग उसको पता है, वो बना देते हैं कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो mg के इक्वल होता है। नहीं, अगले क्वेश्चन में मैं ये भी गलत प्रूफ कर दूंगा कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स mg के इक्वल हो ही नहीं सकता है। मतलब केसेस वाइज इसमें हो गया। आगे क्वेश्चन करेंगे इंक्लाइन प्लेन्स वाले, उसमें गलत कर दूंगा। ठीक है, तो ये अगर n m1g के इक्वल है तो m1g n2 डैश के भी इक्वल होगा। बाय सिंपल मैथमेटिक्स, कोई लॉ वो नहीं है। ओके, क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई सबको? n इज इक्वल्स टू m1g, n2 डैश इज इक्वल्स टू m1g। तो इन दोनों की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट सी में। ऑब्जेक्ट सी में क्या हुआ है कि अब देखो, हमने यहाँ पे n2 डैश और m1g लिख दिया, यानी n2 डैश क्या था हमारा? जो फोर्स ऑब्जेक्ट से आदमी पे आ रहा था, जो फोर्स ऑब्जेक्ट से आदमी पे आ रहा था, वो किसके इक्वल हो गया? जो फोर्स इसके इक्वल है, m1g के, n हो गया m1g के इक्वल, n किसके इक्वल है? n2 डैश के। n2 डैश के इक्वल कौन है? n। और n कौन सा फोर्स था? जो आदमी ब्रिक के ऊपर लगा रहा है। ओके, जो आदमी ब्रिक के ऊपर लगा रहा है। और n2 डैश कौन सा फोर्स है? जो ब्रिक आदमी के ऊपर लगा रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये मैथमेटिकली करेक्ट है। कौन से वाली इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है, फिजिकली नहीं। फिजिकली कैसे नहीं करेक्ट है? अगर देखिए, ये इस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स डाल रहा है। क्या डाल रहा है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये वाली।
N2 डैश mg के इक्वल हो ही नहीं सकते। m1g क्या है? वेट। m1g क्या है? वेट। और n2 डैश क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। n2 डैश क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। वो उस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स डाल रहा है, मगर मैथमेटिक्स हमारे पास क्या है कि वो उसके वजन के बराबर, उसके वेट के बराबर इक्वल हो चुका है। तो मैथमेटिक फिजिकली करेक्ट नहीं है, ये मैथमेटिकली करेक्ट है। ये वाली क्वेश्चन करेक्ट है, मगर ये वाली मैथमेटिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट नहीं है। ओके, अब इसकी बात करते हैं। सी गधा। ओके, गधे पे हमने कौन से फोर्स बना लिए थे? एक N1 डैश जो गधा आदमी पे लगा रहा है, ठीक है, और एक इस गधे पर भी तो आदमी भी तो लगा रहा है, इसको हम बोल देते हैं N3 बाय आदमी बाय बी। ठीक है, क्या चीज समझ में आई? ये N1 डैश कौन डाल रहा था? अब ध्यान, ये हम गधे की बात कर रहे हैं, तो गधे की बात जब कर रहे हैं तो गधे पे कौन फोर्स डाल रहे हैं? क्या उसके पैर ये फोर्स डाल रहे हैं? गधे के ऊपर उसके पैर, हम इसको अर्थ सरफेस कह सकते हैं, मगर इसको हम ध्यान से अगर देखें तो इसके पैर इसके ऊपर फोर्स डाल रहे हैं। तो N1 डैश, हाँ इसको आप इसका भी फोर्स कह सकते हो, मगर ज्यादा एक्यूरेट कहना रहेगा कि उसके पैर उसके ऊपर बाय गधास फुट। ओके, ये उसके ऊपर फोर्स डाल रहे हैं। ओके, तो अगर हम यहां पे फिर से थर्ड लॉ पेयर की बात करें तो ये N3 क्या? N3 क्या? N3 N1 डैश के इक्वल होगा। N3 बाय सेकेंड लॉ। N1 डैश कौन सा फोर्स था? जो गधा आदमी पर लगा रहा है, और N3 कौन सा है? जो आदमी गधा पर लगा रहा है। फिर से हम वैसा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बी। ये ऑब्जेक्ट सी है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ये ऑब्जेक्ट सी ऊपर की तरफ लगा रहा था और ऑब्जेक्ट बी नीचे की तरफ लगा रहा था, यानी आदमी गधे पर लगा रहा था पुशिंग फोर्स नीचे की तरफ, और गधा आदमी पर लगा रहा था पुशिंग फोर्स ऊपर की तरफ। क्या चीज समझ में आई? बाय थर्ड लॉ, सॉरी बाय थर्ड लॉ, थर्ड लॉ पेयर है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन साइमल्टेनियसली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको अगर हम पॉजिटिव माने N1 डैश को, तो आर्बिट्रेरी क्या हो जाएगा? mg क्या हो जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको लिखें कि N1 डैश माइनस N3, अरे N3 को तो हमने यहाँ N2 लिखा भी था, इसको हमने N2 बनाया भी था यहाँ पे, कोई बात नहीं। N3 नीचे की तरफ है, माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो N1 डैश माइनस N3 माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। एक्सेलरेशन क्या है? 0। इनर्शिया फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट से हमने 0 कर दिया। ओके, ये इसको हम M3g लिख सकते हैं। क्या? M3g, क्योंकि तीसरा मास्टर आ गया ना। ओके, और ये किस लॉ से, ये वाला काम किस लॉ से हुआ? बाय सेकेंड लॉ। अब आप बोलोगे हमने फर्स्ट लॉ तो अप्लाई नहीं किया, खाली सेकंड थर्ड लॉ पे ये इनर्शियल फ्रेम किया ना अप्लाई। इनर्शियल फ्रेम है क्या? वो फर्स्ट लॉ के रीइंटरप्रिटेशन ही तो है। अब ये N3, ये तो हमने ऐसे लिख दिया है, N3 N1 डैश के इक्वल है, यानी जो फोर्स ये इस पे लगा रहा है वो फोर्स इसके इक्वल है। और अगर ये जो फोर्स इस पे लगा रहा था और ये जो फोर्स इस पे लगा रहा था, तो क्या ये फोर्स इक्वल हुए? कैसे हुए? ध्यान से देखिए, हमने यहां क्या लिखा? N इज इक्वल्स टू N2 डैश, N इज इक्वल्स टू N2 डैश, N इज इक्वल्स टू N2 डैश लिखा। और फिर क्या था हमारे पास? N3 किसके इक्वल आ गया? N1 डैश के। N3 किसके इक्वल आ गया? N1 डैश। अगर मैं यहां पे N3 लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। और mg किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। mg किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो फोर्स इस पे डाल रहा है और ये जो फोर्स इसके ऊपर डाल रहा है, वो फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी अगर इसका ये फोर्स आदमी के द्वारा इसके ऊपर इक्वल हो गया और
आदमी के द्वारा इस गधे के ऊपर इक्वल हो गया, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल हो गए, यानी इन दोनों फोर्स जो आपस में मिलके जो गधे पर लगाएंगे, तो यानी ये आदमी तो गलत प्रूफ हो गया। क्यों गलत प्रूफ हुआ? ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, वो फोर्स किसके इक्वल हो गया है? जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लगा रहा है। और ये दोनों फोर्स जब इक्वल हुए, इन दोनों फोर्स के इक्वल होने के बाद इसको हम क्या एक यूनिट मान सकते हैं। एक यूनिट माना तो इन दोनों का वेट क्या गधे पे लग रहा है, इन दोनों का वेट गधे पर लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक नहीं दो गधे थे, इसको ये पता नहीं था कि इसका भी वेट इसकी वजह से यहाँ लग रहा है। कैसे हमने निकाला? न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज किया, सेकंड लॉ यूज किया और थर्ड लॉ यूज किया। कॉन्टैक्ट फोर्सेस इक्वल हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस इक्वल हो गए। क्या चीज समझ में आई? वेरी गुड। देखा ये गधा वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इसको आप दोबारा भी ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब इसने कितनी अच्छी क्लैरिटी दी है। न्यूटन के तीनों लॉज को हमने एक क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। न्यूटन के तीनों लॉज ही नहीं, साथ ही हमने इसमें एनसीएफ भी लगा लिया, एमजी भी लगा लिया। अब कौन से फोर्स बच गए हमारे पास? टेंशन फोर्स, और उसके साथ कौन से बच गए हैं? स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन। स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन जो है वो हमारे न्यूटन के एप्लीकेशन वाले पार्ट में आता है, वो हम करेंगे काइनेमैटिक्स के बाद। काइनेमैटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलस सीख लेंगे, उसके बाद हम उसमें क्या उसका एप्लीकेशन आएगा कैलकुलस का भी, वो और अच्छे से हमारा बूस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारा थोड़ा पैटर्न अलग है, पैटर्न हमारा थोड़ा अलग है, उससे क्या क्लैरिटी बहुत अच्छी आने वाली है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, ये गधे वाला क्वेश्चन दोबारा ट्राई करिएगा। नेक्स्ट में वीडियो में हम स्टार्टिंग के दो और क्वेश्चन से करेंगे, एक लिफ्ट वाला और एक ये वाला। अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो हम अभी मैंने आपको बताया था कि वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है, मैथमेटिकली करेक्ट है। जब हम वेट मशीन पे हम चढ़ते हैं तो वेट मशीन एग्जैक्टली पता है क्या वो मेजर करता है? इट एग्जैक्टली मेजर्स द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दैट यू पुट ऑन द मशीन एंड द मशीन दैट पुट्स ऑन यू, दैट फोर्स इज काउंटेड। सपोज इट इज 600 न्यूटन, तो आप इसको ऐसे आर्बिट्रेरी फॉर्म में कह सकते हैं कि वो अप्रॉक्स 60 kg होगा। वो आपका एमजी नाप के नहीं दे रहा है, एमजी माने वेट, वो आपका वेट नाप के बिल्कुल नहीं दे रहा है, वो आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नाप के दे रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नाप के दे रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये छोटी सी चीज बतानी थी, इससे क्या और एग्जांपल्स से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अंडरस्टैंड? सो आई विल ट्राई दैट। एक और वीडियो इसी वीक में फिजिक्स की, उसमें क्या करेंगे हम टेंशन खत्म कर लेंगे और साथ ही जो वेक्टर्स इसमें यूज होने वाला है हम विल ट्राई दैट, विल आल्सो कंप्लीट दैट। और नेक्स्ट वीक से हमारा कंपाउंड एंगल कंटिन्यू होगा, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।